হ্যালো। আমরা প্রাইমারিলি আজকে যে জিনিসটাকে ছোট করে ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ মেরি উলস্টোনক্রাফটস vindication of the rights of women. And in this text what we basically find is, इस टेक्स्ट में हमको जो जो मिलता है वो ये है कि हम लोग को ये देखने को मिलता है कि Wollstonecraft was a part of the 18th century philosophical movement which was called Enlightenment. Now, what was this Enlightenment? Enlightenment है क्या? For the Hindi speaking students, I'm also speaking in Hindi. And for the Bengali medium students, I will also try to speak in Bengali as there are many. So, Wollstonecraft basically 18th century philosophical movement से belong करते थे और Wollstonecraft एनलाइटनमेंट के टाइम से बिलोंग करते थे. एनलाइटनमेंट का टाइम क्या था? एनलाइटनमेंट मतलब जो प्राइमरीली जो ह्यूमन रीजन को और ह्यूमन लॉजिक्स को जो ज्यादा प्रेफर करता था वो था एनलाइटनमेंट. तो मेरी वुllstonecraft का ये जो राइटिंग है जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसका जो टाइटल है, इस टाइटल से ही पता चलता है कि ये किस चीज के बारे में है. वी गेट द आइडिया ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन फ्रॉम its title itself. What does it say? What does it speak about? It speaks about the rights of women, the space that was given to women. जो স্পেস উইমেন কো দিয়া जाता है, মেয়েদের জন্য যে স্থানটা রয়েছে সোসাইটিতে সেটাকে নিয়ে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে. এন্ড দিস এনলাইটেনমেন্ট, এই এনলাইটেনমেন্টটা বেসিক্যালি একটা হিউম্যান রিজন এবং হিউম্যান লজিককে প্রেজেন্ট করে, আর এটা মোনার্কি and tradition in favor of political liberty and progress সেটাকে প্রেজেন্ট করে. So it used to critique the monarchy, it used to criticize the monarchy and the political liberty. So it was basically trying to criticize the contemporary politics. ये जो राजतंत्र है, जो राजाओं का जो रूल है, इसको ये क्रिटिसाइज करता है. और वुllstonecraft एक ऐसे टाइम में फ्रांस में थे जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1789 और फ्रांस में ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इसके तुरंत बाद 1792 से 1795 तक, इस टाइम के बीच मेरी वुllstonecraft फ्रांस में थी. So Mary Wollstonecraft was in France from 1792 to 1795. And she was also very much a witness of what happened in the contemporary France and Paris. फ्रांस और पेरिस में उस वक्त क्या क्या चीजें हुआ था, क्या क्या पोस्ट रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट्स हुए थे, वो सारे चीजों के बारे में मेरी वुllstonecraft बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे. So Mary Wollstonecraft had seen what had happened in France from 1792 to 1795. And ये उस टाइम का लिखा हुआ चीज है, ये उस टाइम का एक डॉक्यूमेंट है जब यूरोपियन कंट्रीज में ये रेवोल्यूशनरी ज़िल बहुत बढ़ चुका था. और मेरी वुllstonecraft ये जो बुक है, ये बुक जो लिखे ये उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ही थे. 1792 में मेरी वुllstonecraft इस बुक को लिखे, जिसके पहले और बाद बहुत सारे 100 साल पहले से या कुछ ज्यादा ही पहले से, जब से जॉन मिल्टन ने अपना पैराडाइज लॉस्ट लिखा, तब से जाके 1813 तक जब जेन ऑस्टन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखे, इन दोनों टाइम के बीच 1792 में मेरी वुllstonecraft अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखे. सो हमको ये पता चलता है कि इट वॉज अ टाइम ऑफ मूवमेंट, इट वॉज अ टाइम ऑफ सोशल चेंज. और सोशल चेंज जो है, ये सोशल चेंज में जो फ्रेंच सोसाइटी तब था, फ्रेंच सोसाइटी में एक क्लास डिस्टिंक्शन था. कैसा था? 2 क्लासेस थे, नोबिलिटी और क्लर्जी.
नोबिलिटी NOBILITY और क्लर्जी CLERGY। ये नोबिलिटी क्लास जो थे ये थे नाइट्स KNIGHTS नाइट्स या द रीजनल रूलर्स, और इन सबों के पास थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था। और जो क्लर्जी क्लास थे वो क्लर्जी क्लास थे रिलीजियस पावर का beholder. So there were two classes in the society. At the very top there was the class called nobility, and with them parallelly existed another class which was called the clergies. Nobility and clergy, these two classes used to be there who used to dominate three classes of people: artisan, peasantry, serf. Who are the artisans? Artisans are the people who used to do handicrafts, who used to be artists, who used to be like blacksmith, the carpenter, the shoemaker, everywhere of the part of the artisan class. Then comes the peasantry. The peasantry class was basically the farmers, the cultivators. And lastly comes the serfs. The serfs are the slaves. Now, ये 5 क्लासेस थे सोसाइटी में। 2 टॉप क्लासेस थे। एक क्लास था जिसको हम बोल सकते हैं नोबिलिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास था, और एक था क्लर्जी जो रिलीजियस प्रीस्ट्स थे। और ये नोबिलिटी लोग जो थे यही बाद में जब बूढ़े हो जाते थे और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो कर नहीं पाते थे तो वो क्लर्जी बन जाते थे। ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता था। और ये दोनों क्लासेस एक साइड में कंटेम्पोररी पॉलिटिकल सोशल जो ट्रेंड है उसको हाथ में ले लेते थे, और उनके बदौलत वो क्या करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे और खुद के पास बहुत पैसा जमा करते थे, और वो लोग धीरे धीरे बहुत एरिस्टोक्रेटिक और पैसे वाले धनी आदमी बन गए। सो equally the clergy class of people used to do the same. They also used to collect money in the name of religion. They used to give wrong explanation of Bible. So all these sort of things used to happen during that time. Now, these all happenings ultimately led the 3 classes, that is the artisan, peasantry and serfs. All these 3 classes, they were all tortured. And this French Revolution, this fall of the Bastille, all these were an outcome of the protest of the lower classes of the society. तो ये जो 3 classes थे, artisan, peasantry और serf, ये तीनों प्रोटेस्ट किए, और इस प्रोटेस्ट के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए, सोसाइटी में चेंजेस आए, प्रोटेस्टिव नेचर आए, और इसी के माध्यम से धीरे धीरे और भी दुनिया बढ़ता गया। और 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जब लिखा गया, उसके पहले रोमांटिक एज में हमने देखा जेन ऑस्टन को 1813 में जो प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखी थी, उस नॉवेल में भी हमको ये पता चलता है कि कैसे सोसाइटी में सोशियो पॉलिटिकल लिबरेशन या स्वाधीनता सिर्फ नहीं आया, बाद में ये जेंडर लिबरेशन भी आया। जो पेट्रियार्की या पुरुषतांत्रिक जो सोसाइटी था उससे निकल के जो विमेन थे, जो औरत थी, जो लड़कियां थी, जो वीकर सेक्स के नाम से माना जाता था, जो सेकंड सेक्स के नाम से माना जाता था, जिनको हम बोलते हैं कि थोड़ा कमजोर एक जेंडर है विमेन, वो अपने आप को लिबरेट करने लगा इस पैट्रियार्कल रूल से। और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ऐसा ही एक टेक्स्ट है जो वुमेन को अपना राइट्स, अपना स्वाधीनता, अपना अधिकार के बारे में बोलता है। सो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये एक तरफ से प्रोटेस्ट है, और दूसरी तरफ से ये उन चीजों के बारे में बोलता है जैसे लॉज दैट आर रिलेटिव टू वुमेन। लॉ मतलब जो कानून होता है, LAWS, लॉज दैट आर रिलेटिव टू वुमेन, एंड इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट देयर पर्टिकुलर ड्यूटीज। वुमेन का जो ड्यूटीज होते हैं, वुमेन का जो काम होता है, जो होता है सोसाइटी में और जो करवाया जाता है सोसाइटी में, उन सारे चीजों के बारे में भी हमको विंडिकेशन ऑफ द राइट्स में आइडियाज मिलते हैं। और
ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में हम यहाँ पे बुक 1 और बुक 2 जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में है वही पढ़ेंगे। तो ये था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का बैकग्राउंड। थैंक यू।